Good afternoon, dear class 8 students. So, once again, we are here. So, last time we have completed our chapter 9. That was a very beautiful poem, and I hope you all have done the exercises from that poem. So, now today we are going to start our new chapter, that is chapter 10, A Letter to God. And before starting the chapter, let us learn something about the author of this, the writer of this story. Now let us see about the author. G.L. Fuentes was born at Lanzarote in the Canary Island. In Lanzarote in the Canary Island, it is the birthplace of the author, of the author G.L. Fuentes. Now he was a fisherman, वो एक fisherman था, and the first mate of the pillar, friend of a pillar, the boat belonging to the American writer Ernest Hemingway. Ernest Hemingway का first friend भी था. Now let us see. This is the short information that is given in the book. You can have more information in the net about him. So you just try to search and write a paragraph on him. आप लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है जो हम लोग अभी तक करते आए हैं. ऑथर के बारे में पैराग्राफ लिखना है. So that will be your homework. Now let us go to the vocabulary. I will make you learn about the pronunciation, and your work is to learn the spellings and plus the meaning and to write on the notebook. नोटबुक में लिखने का भी ये काम भी आपका आज का होगा. About the author, paragraph about the author and the vocabulary. Now number 1 is intimately, घनिष्ठतापूर्वक, घनिष्ठता एकदम नज़दीक. Something done with a great familiarity personally. Hailstone, a pellet of hail. हम लोग ओला कहता है ना, ओला अथवा the stone that comes along with the rain. वर्षा के साथ में आने वाला पत्थर. Pearl, a person of thing of great worth, बहुत valuable, बहुत expensive. Now plague, an unusually large number of insects or animals infesting a place and causing damage. Large number of insects, कीड़ा और animals, जानवर. Infesting का मतलब होता है feast करना, खाना, बर्बाद कर देना. ये सब प्लेग वो है. Locust, a large mainly tropical grasshopper with strong powers of flight. ये locust का मतलब होता है it is a kind of tropical grasshopper. हम लोग grasshopper तो देखते हैं, लेकिन ये tropical grasshopper उन लोगों का उड़ने का शक्ति बहुत strong होता है. And it destroys our fields, crops. Conscience, a person's moral sense of right and wrong, viewed as acting as a guide to one's behavior. आदमी का सही और गलत अलग करके उसको सही काम करने का जो बिहेवियर होता है उसको conscience कहते हैं. Pesos, the basic monetary unit of several Latin American countries and of the Philippines, equal to 100 centésimos in Uruguay and 100 centavos elsewhere. ये लैटिन अमेरिका में यूज़ किया गया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का ये करेंसी है, पेसोस. नाउ लेट अस सी क्रूक्स, द हुक्ड स्टाफ ऑफ अ शेफर्ड. शेफर्ड का मतलब हम लोगों को मालूम ही है, गाय बकरी चराने वाला, और हम लोग होली शेफर्ड भी कह सकते हैं. नाउ यहाँ शेफर्ड, ये हुक्ड का मतलब होता है, क्रूक का मतलब होता है बेईमान स्टाफ ऑफ अ गुड शेफर्ड. अच्छा गोठाला का बेईमान कामदार हम लोग कहते हैं ना, स्टाफ. नाउ दिस वेर ऑल द थिंग अबाउट द वोकेबुलरी एंड अबाउट द ऑथर. प्लीज डियर स्टूडेंट, ट्राई टू नो समथिंग अबाउट द ऑथर and do this activities that I have said now. Now let us move through our chapter. First of all, let us see what is there in the box. Suppose there is a calamity, you suffer a big loss,
You know that you and your dear ones are going to starve. There is no one who can help you except God. So you write a letter to him. Will God answer that letter? कैलामाइटी का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है. पैंडेमिक हम लोग ये कह सकते हैं, वो पैंडेमिक ए डिजास्टर कह सकते हैं, जस्ट लाइक फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सब earthquake. These are all natural calamities that destroys the lands, that destroys land surface. So कैलामाइटी के बारे में आप लोग मालूम है. अगर कैलामाइटी आ गया और और आप बहुत लॉस में पड़ गए, अगर आपका जो खेती बाड़ी था, जो क्रॉप्स था, सब डिस्ट्रॉय हो गया और आप लोगों को साल भर भूखा रहना पड़ेगा, तो आपने डियर वंस जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे, हाउ कैन यू हेल्प हिम? हाउ कैन यू हेल्प देम? स्टाफ, देयर इज नो वन टू हेल्प. अब कोई तो हेल्प नहीं कर सकता है. सो विल यू राइट लेटर टू गॉड? आप भगवान तो हेल्प करते हैं, हम लोग बोलते हैं, कोई नहीं है हेल्प करने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला है, तो भगवान हम लोगों को साथ देता है. ये हम लोगों का कहना है, कहावत है. तो यहाँ पे अगर आप भगवान को हेल्प मांगोगे, आपको भगवान को चिट्ठी लिखोगे, लेटर लिखोगे, तो क्या भगवान तुम्हें आंसर देगा? भगवान आपको हेल्प करेगा? इस किस्म का क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है. एंड दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. एंड लेट अस सी. अब यहाँ पे ये स्टोरी एक प्रकार का है कि भगवान प्रति का एकदम कठोर विश्वास कैसा होता है. हम लोग फीलिंग्स, गॉड के ऊपर में फीलिंग्स कैसा है, हम लोग फीलिंग्स के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सो यहाँ पे ये इस आदमी का फीलिंग्स गॉड के ऊपर कैसा है, डिवोशन, भक्ति, अथवा उसके ऊपर का भरोसा कैसा है, वो इसके बारे में ये कथा बताया गया है, जिसको हेल्प करने के लिए एक पोस्ट ऑफिस का सब स्टाफ तैयार होता है. सो वी विल बी लर्निंग दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट आवर chapter. Now first, the house, the only one in the whole valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ पे बताया गया है वो फार्मर का हाउस, where it is. एक क्रेस्ट में था. क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ी शिखर, थोड़ा ऊंचा में था, शिखर में. और वहाँ से क्या दिखाई देता था? नदी, और उस नदी नाला दिखाई देता था, नदी दिखाई देता था, और उस फार्मर का खेत अथवा फील्ड सब दिखाई देता था, जहाँ पे राइप कॉर्न, पका हुआ अनाज, पका हुआ मक्का, पका हुआ गेहूं, जो भी उस सीजन का अनाज था वो पक गया था, और वो सब दिखाई देता था. फ्रॉम वेयर द फ्लावर्स वे डैशिंग आउट, फ्लावर्स निकला हुआ. एंड इट लुक्स अ वेरी गुड सीन, अथवा द फील्ड लुक वेरी ब्यूटीफुल. और ये फील्ड क्या था? हर साल एकदम गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छा अनाज देता था फार्मर को. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. The only thing the earth needed now was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, a farmer named Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but look at the sky towards the northeast. अब यहाँ पे लेंचो, जो फार्मर के बारे में मैं बता रहा था, उसका नाम लेंचो है. लेंचो क्या, अब यहाँ जो उसने बाली लगाया था और जो उसका क्रॉप्स था वो खिलने लग गया था. अब सिर्फ उसको यही इंतज़ार था कि वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए. सो यहाँ पे जो लेंचो, जो अपने खेत के ऊपर में पूरा भरोसा था, इंटीमेटली मतलब वो पूरा घनिष्ठ प्यार था, उसके ऊपर भरोसा था, क्योंकि वो खेत उसको कभी धोखा नहीं देता था. हर टाइम अनाज उसका गुड होता था, अच्छा हार्वेस्ट होता था. सो वो कुछ नहीं कर रहा था, खेत में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था ताकि बारिश हो, बारिश को देख रहा था. इसका मतलब बारिश को वो बार बार देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम रेन वुमन, ही सेड. द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. उसी टाइम लेंचो ने अपना
पत्नी को कहा होगा, वुमन कहा है, यहाँ वाइफ तो नहीं कहा है, लेकिन फिर भी एक औरत को कहा कि अब हम लोगों के पास बहुत अच्छा बारिश होगा। और वुमन ने भी कहा हाँ, गॉड इज़ विलिंग, ईश्वर यही चाहता है। नाउ लेट अस सी, गॉड का इच्छा, गॉड विलिंग का मतलब होता है गॉड का इच्छा, गॉड भी यही चाहता है, नहीं, गॉड का इच्छा, गॉड, ईश्वर का इच्छा। Next paragraph. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come to dinner. Now this is the scenery, or this is all the activities that the different people were doing here. Now let us see the older boys. थोड़ा बहुत जो बुजुर्ग बड़ा था वो लोग फील्ड में काम कर रहा था। छोटा छोटा the smaller ones they were playing near the house, घर के आसपास खेल रहा था। उसी समय उसका माँ ने बुलाया, अथवा वो औरत ने बुलाया सबको खाने के लिए, डिनर के लिए। It was during the meal that just as Lenzo had said earlier, big drops of rain began to fall. अब यहाँ पे सांझ का समय वो था, डिनर खाने, डिनर का मतलब होता है रात का। मील जब खा रहा था तो लेंसो को महसूस हुआ, सेड अर्लियर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जो लेंसो ने सोचा था, जो उसने होप, आशा किया था, वैसे ही खाते खाते क्या हो गया, खाना खाते खाते समय वहाँ पे बारिश होना शुरू कर दिया, एकदम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। नाउ लेट अस सी अनदर, दिस इज द पिक्चर, यू कैन सी ऑल द पीपल आर देयर। नाउ देयर इज अ रिवर, द हाउस इज ऑन द क्रेस्ट and some people are working on the fields. So now let us move to another part. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Northeast, हम लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर की तरफ से क्या हो आ रहा था, एकदम उत्तर का ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, एकदम बड़ा बड़ा क्लाउड्स वहाँ से निकल रहा था। दे वर अप्रोचिंग, नज़दीकी हो रहा था। द एयर वॉज वेरी फ्रेश एंड स्वीट, एयर बहुत मधुर था, बहुत अच्छा था, आनंद देने वाला हवा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दिस आर लाइक न्यू कॉइन्स. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cents. Now यहाँ पे हम लोगों को मालूम है, किसान जो होता है, किसान जब किसान के खेत पे बारिश होता है तो किसान का मन, जो हृदय होता है, प्रफुल्लित होता है, बहुत खुश आ जाता है उन लोगों के चेहरे पे। यहाँ पर लेंसो भी वही था, वो भी बारिश का प्रतीक्षा कर रहा था। और जब खाना खाने के टाइम में ये सब कुछ हो रहा है, ड्रॉप्स ऑफ रेन गिर रहा है, तो उसका जो खुशी का सीमा ही नहीं रहा। वो खुद बाहर चल के गया, बाहर दौड़ के गया, टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, जो रेन बारिश हो रहा था उसका आनंद लेने के लिए वो दौड़ के बाहर गया। और वो जब वापस आया तो उसने कहा, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश नहीं है, ये साल का अथवा इस समय का पहला कॉइन है, पैसा है ये। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ा बड़ा ड्रॉप्स है, बड़ा बड़ा बारिश का बूंदे है, ये 10 सेंट है और पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट, छोटा छोटा बूंदे, बारिश का बूंदे वो 5 सेंट का है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 100 सेंट इज इक्वल टू 1 पेसो। यहाँ पे 10 सेंट 5 सेंट्स मतलब 500 सेंट 100 सेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं। सो यहाँ पे वो बारिश का देख किसान कितना खुश है। वो तो जब बारिश में भीग के अंदर आया तो सबको एकदम खुशी साथ कहने लगा, ये बारिश नहीं है हम लोगों के लिए, ये तो हम लोगों के लिए नया पैसा है, नया हम लोगों के लिए खुशी लाने वाला एक नया क्या कहता है, धन है। तो उसने ये भी कहा कि जो बड़ा बड़ा बूंदे है, बच्चे को कहा बड़ा बड़ा बूंदे है वो 10 सेंट्स है, और जो छोटा छोटा बूंदे है बारिश का वो 5 सेंट्स का है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ।
With a satisfied expression, he looked at his field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain. Now एकदम satisfy आनंदमय उसको satisfy हो गया था जब ये बारिश आ रहा था। उसका जो चेहरे पे जो उसका बॉडी लैंग्वेज था बहुत सेटिस्फाई हुआ था, संतुष्ट हुआ था जो बारिश का रेन के कारण, क्योंकि ये बारिश उसका जो क्रॉप्स था उसके ऊपर में बारिश लहरता हुआ चल रहा था, उसके ऊपर गिर रहा था और उन लोगों को एक नया लाइफ दे रहा था क्रॉप्स को। सो ही वॉज सेटिस्फाइड। ये किसान जो लेंचो था, फार्मर था, वो बहुत खुशी था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। अब लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश क्या हुआ, बहुत ज़ोर से वहाँ पे तूफान विंड हम लोग कहते हैं ना, वो चलने शुरू किया, हवा चलना शुरू किया। उसके साथ में लार्ज हेल स्टोन का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, ओला, बारिश के साथ में गिरने वाला पत्थर, वो भी गिरने लग गया विद द रेन। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब लगते थे वो जो दिखने में वो सिल्वर कॉइन जैसा लगता था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। पेयर्स का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, वो वर्ड मीनिंग में आप लोग देखिए, पेयर्स का मतलब होता है एक्सपेंसिव। ये बॉयज नया कॉइन, सिल्वर कॉइन जमा करने के लिए दौड़ रहा है, मतलब हेल स्टोन जमा करने का। हम लोग भी बच्चे के टाइम में, अथवा अभी भी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भी जब हेल स्टोन गिरता है तो आप लोग जमा करते होंगे दौड़ के जाके उसको। सो यहाँ पे बच्चे भी वही कर रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। और ये बहुत बुरा हो रहा है, कृपा करे है भगवान ये जल्दी ख़त्म हो जाए। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। It did not pass quickly. It held for an hour on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. Now यहाँ पे जैसे किसान ने चाहा ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। वो बहुत देर तक हेलस्टोन गिरता रहा। उसके बाद में फील्ड, गार्डन, कॉर्नफील्ड, जो उसका जगह था, जो उसका क्रॉप्स था, trees, even trees, they were covered with a hailstone and it looked like a white salt. White salt ने कवर किया जैसा सब वहाँ पे दृश्य था। सब के सब डिस्ट्रॉय कर दिया उसका क्रॉप्स। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। ट्री का जो लीफ था वो भी कवर हो गया हेलस्टोन से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लिंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब सब कुछ तो बर्बाद हो गया वो हेलस्टोन के कारण। ये हेलस्टोन है ही ऐसा, हम लोग यथार्थ सच में हम लोग प्रैक्टिकली भी अगर ये देखेंगे तो हेलस्टोन बहुत नुकसान कर देता है। जो खेती बाड़ी करने वाला इंसान को बहुत रुलाता है हेलस्टोन। और ये जो आंधी बेरी होता है ये भी रुलाता है, नुकसान कर देता है। और ये प्लेग लॉकस्ट भी नुकसान कर देता है। So these were all the thing that was doing that did by this hailstone. Hailstone ने फार्मर लेंचोस का सब खेत डिस्ट्रॉय कर दिया, नुकसान कर दिया। Everywhere there were hailstone looking just like a salt. जहाँ सल्ट का कलर तो आप लोगों को मालूम ही है, नमक का सफ़ेद होता है। Everywhere there it was white. Even the leaves of a tree were also covered with the whiteness. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. सब प्लांट से फ्लावर गिर गया। लेंसो's soul was filled with sadness. लेंसो नाउ अब बहुत दुखी मान रहा है, उसका मन रो रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया था, आंधी ख़त्म हो गया था, हेलस्टोन ख़त्म हो गया था, वो अपने फील्ड के बीच में सेंटर में खड़े होकर अपने बच्चे को कह रहा था। क्या कह रहा था? A plague of locust would have left more than this. The hailstone has left nothing. This year we will have no corn. अब यहाँ पे ये स्टॉर्म और हेलस्टोन और प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसके ये दोनों को तुलना कर रहा है। ये दोनों को ये कंपेयर कर रहा है लेंचो फार्मर। अगर हेलस्टोन के बदले में ये जो प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो कीड़ा ग्रासहॉपर वो आ जाता डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रॉप्स, तो कम से कम कुछ तो छोड़ देता, कुछ तो रख देता। लेकिन ये हेलस्टोन ने सब के सब बर्बाद कर दिया।
अब हम लोग साल भर हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टाफ, भूखा रहना पड़ेगा। वी हैव नो कॉर्न टू सेल और टू ईट टू स्टोर फॉर द होल ईयर। अब ये चिंताजनक का बात था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उस रात बहुत सबके लिए एकदम दर्दनाक था, बहुत दुख का क्षण था। अब यहाँ पे हम लोग, लेंचो बोल रहा है हम लोगों का सब जितना भी मेहनत था सब वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब ये साल हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। लेंचो ने ऐसे कह रहा है अपने परिवार के साथ। नाउ but in the hearts of all those who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जो solitary house, वो अकेला जो घर था, वो क्रेस्ट में जो अकेला घर था, उन लोगों के पास जो स्टॉर्म ने, हेल स्टोन ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर में एक आशा था, आशा का किरण था, एक होप था। दैट वाज द ग्रेट होप ऑन गॉड, ओवर गॉड, ग्रेट डिवोशन ओवर गॉड। उन लोगों के भगवान के प्रति आस्था था, श्रद्धा था। अब यहाँ पे वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब भगवान से सहायता मांगना है, भगवान के चरणों में ही जाना है। अब यही एक आशा था। नाउ लेट अस सी, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ पे बता रहा है कि अपसेट मत हो, दुखी मत हो अथवा वरी मत हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ गॉड, भगवान के कानून की व्यवस्था के अनुसार, नो वन विल डाई ऑफ हंगर, भूखा कोई भी नहीं मरेगा। और हम लोग तो और मेहनत करने वाला इंसान है, ईश्वर अवश्य हम लोगों को मदद करेगा। ऐसे करके वैसे भी वो लोग मेहनती था। अब ये तो क्या करें, ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, इसीलिए उन लोगों का सब सत्यानाश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। सो यहाँ पर फिर भी या लेंसो जो था, सीनियर ऑफ द फैमिली, अ होप ऑफ द फैमिली, वो भी अगर हिम्मत हार गया तो दूसरा फैमिली, चिल्ड्रन, वाइफ और अदर जूनियर मेंबर क्या करेगा अथवा क्या सोचेगा। सो यहाँ पे वो अपने आप को एक मजबूत बनाते हुए वो भगवान के शरण में जा रहा है, सबको दिलासा दे रहा है कि ईश्वर हम लोगों को मदद करेगा। Now let us see. All through the night, Lenzo thought only of his way, of his one hope. One hope, the help of God, whose eyes, as he had seen, had been taught, see everything, even what is deep in one's conscience. अब यहाँ पे वो एक ही बात सोच रहा था। उस रात बहुत वो सोचने लग गया और सोचते सोचते उसका जो अंदर में ईश्वर प्रति का जो श्रद्धा था, विश्वास था, वो अब राइट और रॉन्ग थिंग्स के बारे में सोचने लगा, अपना कंसाइंस यूज़ करने लग गया, तरीका, प्लान, आइडिया ढूंढने लग गया। उसको मालूम था भगवान ईश्वर हमें अवश्य हेल्प करेंगे। तो इसी तरह ये होप को यूटिलाइज करने के लिए वो अपना कंसाइंस, अपना थिंकिंग पावर को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा था। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग आप लोगों को मालूम ही, ये 2 सेक्शन में हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे। अभी तक जितने भी हम लोग ने पैराग्राफ पढ़ा है वहाँ से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लोगों को उतारना है, उसका स्पेलिंग लर्न करना है और प्रोनाउंसिएशन लर्न करना है। दैट इज़ योर another work. So let us stop here. We'll continue tomorrow. Thanks for listening the video. Have a nice time. Bye bye.